केतन जी, एक बड़ा डिफरेंस जो मुझे दिख रहा है उस वैनिटी वैन में और इस वैनिटी वैन में कि मेरे पीछे एक कैमरा है। सो ओह ये यस यस। किस लिए है? ये सीसीटीवी कैमरा है और जनरली आर्टिस्ट प्रीफर नहीं करते, लेकिन जो नोरा फतेही मैडम है, उनकी डिमांड थी, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मतलब मैं उन्होंने बाहर भी कैमरा लगाया हुआ है। अगर मैं वैन में बैठी हूँ तो बाहर क्या हो रहा है वो मुझे चेक करना होता है। प्लस अगर मैं सेट पे हूँ तो मेरे मोबाइल पे मैं चेक कर सकती हूँ कि मेरे वैन में क्या हो रहा है। From lights, camera, and action, what goes on behind the camera, behind the scenes that you must want to know, and what goes on inside a vanity van. That's what we are going to show you today because that's a lot of comfort. Looks like a home, looks like a palace, a luxurious life, and a place to rest and to get makeup done before they hit the screen. Let's come with us. So we have finally entered the luxurious vanity van. What is inside the van? Let me show you. So when you enter, this is the green room kind of thing where they do their makeup and has the small washroom when you enter. So this is for the staff or their associates that come with the celebrity. And here you can see a lot of cupboards that are there which are closed obviously for the privacy reasons, and we don't want to see what is inside. And this is the mirror, a big mirror. So after getting ready, how do you look like? The final look can be seen here. And this is the sofa where you can take a little bit of rest or sit down, or because there's a lot of staff who is with the celebrities, so they can also sit with them. And here it is, this is the place which is the makeup station, I would say, because this is very important for the celebrities. They come here, sit, get ready, and their makeup dada comes with them. And these are the lights. That's how it looks like. And now we enter inside. Let me show you around. Wow, so finally we have entered the luxurious vanity van. Earlier you saw the green room, and now I have entered where they take rest in between the meetings and between their shoots. And on my left side there's a curtain that you can see, and the color combination of the vanity is very different. It's very warm. And on my right side there's another washroom which is for the actor or the celebrity who owns this vanity van. This is of a male celebrities vanity van. If you see the color combination here, pastels and the wooden color, obviously the style of male celebrity. And here on this side you can see there's a TV also, if you want to take rest and can watch this TV. And then here these are the small cupboards. These are not just the cupboards, this is the mini fridge where you can keep your cans and cokes and take rest and sip in between. And here's, this is the big mirror, so I can also get my some touch up done here because it looks very lavish and luxury to me, and I would love to stand here and get ready for my shoots and for my work. And on this side has the couch, so you can say this is the place where somebody can come and sit and talk and then take rest also if feel like. And it's quite relaxing. And the color combination that you see there, because now the owner has also told us that the fabric is also chosen by the celebrity himself or herself only. So if you see on this side there's another couch, so it's little bigger. In Mumbai, getting this much of space is also very tough. So if you see here, this corner, I love this corner because it's very relaxing. And here it's a long couch, so you can also take rest because they have long shoots. And in between the shoots, you need fuel. So you can go for the meetings. And here I will show you the rooftops also, so you can see the lighting, the ceiling of the vanity van here, and AC on my behind. So there are two ACs, one here and one in the green room also when you enter. But here the lighting is very warm, so it has been very peacefully chosen. So you can say that this is a palace, not just a home, it's a palace. And it should look similar to their home. That's how they want it to be designed, and it has been manufactured just like that only. And it's not just about one celebrity. Every celebrity has their own choice of fabric and color.
now we have entered the female celebrities vanity van. How it looks like, it's very colorful, very warm, and it's very different from the male celebrities vanity van. So here you can see that there's a microwave, and the color combination of the cupboards here, you can see that. And on this side, similarly, there's one washroom, which is for the staff that comes along with the celebrity. And these are some of the small cupboards that they can keep inside their stuff, and it's locked, and we are not going to open this. And this is the microwave, and this is the big mirror similarly after the looks. And here is one difference in this vanity van, which is this camera that you might not have seen in any other vanity van, and I haven't seen till now in any other vanity van. This is not just for all female celebrities, but this is for just one celebrity, Nora Fateh, which requires this kind of camera for her own safety and for her own reasons. For that, you will have to listen into Mr. Ketan. He will tell you the reason. And now here you can see a couch, which is very relaxing and very colorful. Here it is written a quote, which is also a speciality of women. They love to read. And this is a pink couch, which is very girlish. Then you can recognize that it's a female celebrities vanity van. And here's a table and a chair where they can come and sit and talk, and their staff can also sit. And now let's get inside. What is inside their lavish vanity van? This is not pastel, but it has very sober colors, white and sea green. Here a mirror kind of wall, you can see. This looks very luxurious to me. I just love this mirror wall. And you can see this is not a cupboard, but it's a washroom. So it's little different, design different, with a lot of colors. And on this side, if I talk, for any female celebrity, for any actress, makeup is the most important thing. So you can see here's the TV, and right next to the television, this is the makeup station where they get ready before their shoots. And this is a mirror with all the lights that are required, and here they can sit and chat. And then also getting ready, must be sitting here, I am assuming, in front of the mirror and getting ready, getting their touch-ups done. And in between the shoots also, if they need touch-up, they come here and relax. And I will place it back. And here it's a small stool kind of thing where you can also sit. But along with that, I just love this chair. The color combination is very nice, because this is the clutter breaker between the white and dull colors. But this is very nice color, and the walls are different. You can see every wall has a different color here. And this couch is more relaxing. I'm assuming they must be reading here their dialogues and doing their meetings in between the shoots. If they want to take a breath, they can certainly take rest. I am also a little bit of tired, exhausted. I feel like that I should sit here and relax a little bit on this couch. And you can see there's a lamp also. This is also very girlish. And the AC color, this is very different. It's white, but the white has been colored with the pink. So you can see it has been matched with the back wall. And here it's gray, but there's a double shade in this gray also. And then these are the wall panels that have been installed here on the walls, very beautifully designed, and certainly by a female celebrity. And you can see here's the table also along with the couch. If you want to have snacks, have lunch, dinner in between the shoots. And now you can imagine the rooftop is also very different. It has some warm lighting which is falling here, and both the sections of the vanity van look very different. The earlier one had sea green color and white combination, and now here you can see gray, white and pink, all these colors, which fabrics are very warm and pleasing to eye.
और अब हम फीमेल सेलिब्रिटी की वैनिटी वैन में हैं। इसमें क्या डिफरेंस होता है वो आप लोग देख चुके हैं। और मेरे साथ केतन जी हैं जो यहाँ के ऑनर है, सप्लाई करते हैं सबको, ये सारे प्रोवाइड करते हैं वैनिटी वैन्स। केतन जी, एक बड़ा डिफरेंस जो मुझे दिख रहा है उस वैनिटी वैन में और इस वैनिटी वैन में, कि मेरे पीछे एक कैमरा है। तो ओह ये यस यस। किस लिए है? ये सीसीटीवी कैमरा है और जनरली आर्टिस्ट प्रीफर नहीं करते, लेकिन जो नोरा फतेही मैडम है उनकी डिमांड थी, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मतलब मैं उन्होंने बाहर भी कैमरा लगाया हुआ है। अगर मैं वैन में बैठी हूँ तो बाहर क्या हो रहा है वो मुझे चेक करना होता है। प्लस अगर मैं सेट पे हूँ तो मेरे मोबाइल पे मैं चेक कर सकती हूँ कि मेरे वैन में क्या हो रहा है। तो उन्होंने स्पेशली उनकी एक डिमांड थी, तो दोनों रूम में सीसीटीवी कैमरा प्लस एक्सटीरियर में भी सीसीटीवी कैमरा डाला हुआ है। तो उनकी डिमांड थी इसलिए वो करके दिया। अदरवाइज़ हर एक आर्टिस्ट ये प्रेफर नहीं करते। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक आर्टिस्ट की अलग अलग डिमांड होती है, हर एक की कस्टमाइज अलग अलग करना पड़ता है। तो ये नोरा मैडम का रिक्वायरमेंट था, तो इस हिसाब से उनको मैंने ये करके दिया। आपके पास बहुत सारे किस्से हैं। एक किस्सा आपको और भी मशहूर है कि अपने डेटॉल के ऊपर भी आपको सम्मानित किया गया था, यस है ना? यस तो यस वो यस। क्या है, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। वही जो मेरा कोविड में जो काम किया, मुंबई पुलिस को मैंने सर्विस दिया था, तो वो लोग बहुत खुश हुए थे। और वो मतलब कि आप सच में मतलब कोविड वॉरियर हो, उन्होंने कोविड वॉरियर का मुझे सम्मान दिया और मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट हैम्पर दिया कि जो पूरे साल तक मेरे घर पे सब डेटॉल का मटेरियल चले। इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये था कि जो उन्होंने उनका हैंड वॉश का बोतल था जो प्लास्टिक का आता है, वो 10,000 बोतल पे मेरा फ़ोटो छपाया उन्होंने। और जो लिखा था कि कोविड वॉरियर है ये, और मुझे एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट दिया कि आपने इतना अच्छा काम किया। तो आज 90 साल पुरानी कंपनी और इतनी एस्टैब्लिश कंपनी डेटॉल कंपनी अगर इतना सम्मान करे मेरे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात थी वो। और अभी भी मेरे पास वो बोतल भी मैंने संभाल के रखा है और सर्टिफिकेट भी संभाल के रखा है मैंने। केतन जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको आप वैनिटी प्रोवाइड करवाते हैं? अभी मैं सैफ अली खान, सनी देओल, जॉन अब्राहम, बॉबी देओल, रवीना टंडन, तापसी पन्नू, कैटरीना कैफ, तारा सुतारिया, साउथ में नयन तारा, जो केजीएफ की हीरो है, यश वो है, अर्जुन रामपाल है, कंगना रनावत है, सोनाक्षी सिन्हा है, सबको सप्लाई करता हूँ। इनके अलावा क्रिकेटर्स है इसमें महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, वो सब मेरी वैन यूज़ करते हैं। इवन अंबानीज फैमिली में अगर कोई भी फंक्शन होता है तो मेरी वैन लगती है। सेलिब्रिटीज़ की वैनिटीज़ में ऐसी क्या खासियत होती है कि वो अलग होती हैं? कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो स्पेशल डिमांड पे बोले कि नहीं मुझे यही चीज़ चाहिए? इस सब की एक्चुअली मेरा ये कॉन्सेप्ट मैं ही लेके आया था इंडस्ट्री में। सबसे पहले ऐसा था कि जो आर्टिस्ट को जो वैन दिया उसमें वो बैठ जाते थे। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम 2013 में मिस्टर सैफ अली खान को मैंने बोला था कि मैं आपको क्या चाहिए वो हिसाब से वैन बना के दे रहा हूँ। वो फर्स्ट टाइम वो भी शॉक हो गए थे, मतलब आप कितना चार्ज लोगे? मतलब पैसा नहीं लूँगा, इन्वेस्टमेंट मेरा रहेगा, आपकी चॉइस की वैन बना के देता हूँ। तो फर्स्ट टाइम कस्टमाइज वैन बनाना शुरू मैंने किया था। उन्होंने बोला कि मेरी इंटीरियर डिज़ाइनर बनाएगी, तो उनकी एक इंटीरियर डिज़ाइनर थी, उन्होंने वैन बनाई और पूरा इन्वेस्टमेंट मैंने किया। फिर जब ये मार्केट में मालूम पड़ा तो अजय देवगन सर आए मेरे पास, अर्जुन रामपाल आए, कंगना रनावत आई, तापसी पन्नू, तो सबको मैंने कस्टमाइज वैन उनकी चॉइस के हिसाब से, उनको जो चाहिए, मतलब इंक्लूडिंग मतलब जेट स्प्रे से लेके कर्टेन हो, वुडन फ्लोरिंग हो, इंटीरियर का पूरा लुक हो, हर एक चीज़ उनको जो चॉइस चाहिए वो पहले से हम लोग ग्राउंड प्लान से नक्की करते हैं कि ये 40 फीट बाय 8 फीट का चेसिस है, उसके ऊपर आपको कितने बाय कितने का आपका कॉन्फ्रेंस रूम चाहिए, कितने बाय कितने का आपको बाथरूम चाहिए, कितने बाय कितने का आपके स्टाफ के लिए रूम चाहिए, उनका वॉशरूम कितना चाहिए, आपको कैंटीन आप पेंट्री कहाँ पे चाहिए। तो हर एक चीज़ उनकी चॉइस के हिसाब से पहले ग्राउंड पर बनती है, फिर एक लुक एंड फील डिसाइड होता है कि ये लुक एंड फील चाहिए मुझे, ये डिज़ाइन चाहिए मुझे, ये चीज़ें चाहिए। जैसे सैफ सर को हमेशा ऐसा था कि मुझे हैवी म्यूजिक सिस्टम चाहिए, लेटेस्ट म्यूजिक सिस्टम होनी चाहिए, तो हरमन कार्डन का ही होना चाहिए या पर्टिकुलर कंपनी का ही होना चाहिए, और वो मॉडल नंबर के साथ में बताते थे कि मुझे वही चाहिए। सेम अगर कंगना मैडम है तो कंगना मैडम बोला आप मेरे घर पे आ जाओ, तो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया था और उन्होंने मुझे बोला कि कितना भाई ये मेरे घर का लुक है, मुझे ये चाहिए। तो अकॉर्डिंगली वो हिसाब से इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ में मैं जाता हूँ और वो लुक एंड फील उनको एग्जैक्ट देता हूँ। सेम विद्या बालन मैडम है, तो विद्या बालन ने भी वही किया था कि मेरे घर पे आओ। उन्होंने उनका घर का जो कमरा था, जो वो उनको जो टेक्सचर पेंट था, जो उनका फैब्रिक था चेयर का, वो सब उन्होंने बोला कि मुझे ये एज इट इज़ सब चाहिए, कि मैं अगर वैन में बैठी हूँ तो ऐसा लगना चाहिए कि मैं घर पे बैठी हूँ। तो हर एक चीज़ का ऐसा था। तापसी पन्नू मैडम ने बोला कि नहीं मेरी सिस्टर है वो डिज़ाइन करेगी मेरी वैन, क्योंकि उनको मेरी चॉइस मालूम है। तो उनकी बहन ने डिज़ाइन किया, नुपुर मैडम ने, और पूरा लुक एंड फील वही सेम दिया। तो हर एक आर्टिस्ट की चॉइस के हिसाब से मैं वैन बनाता हूँ, उनको क्या चाहिए वो हिसाब से तो कस्टमाइज वैन बना के देता हूँ उनको मैं।
तो ये तो बात हो गई कि उनको क्या चाहिए, लेकिन बेसिक नेसेसिटी की अगर हम बात करें कि एक वैनिटी वैन में क्या होता है? एक वैनिटी वैन में अभी हर एक आर्टिस्ट है वो कोई सिंगल डोर, पहले सिंगल डोर यूज़ करते थे, एक ही वैन, एक वैन में एक ही रूम होता था। अभी सब लोग डबल रूम यूज़ करते हैं कि एक रूम उनके लिए मतलब रेडी होने के लिए रखते हैं लोग, कॉस्ट्यूम और मेकअप के लिए, और दूसरा रूम है वो उनको खाली उसमें वो लोग मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं। तो प्लस वो जो ड्रेसिंग रूम है वो उनके स्टाफ के लिए भी यूज़ करते हैं, तो एक स्टाफ के लिए एक छोटा सा वहाँ पे वॉशरूम भी देते हैं हम लोग, एक पेंट्री देते हैं जिसमें फ्रीज, माइक्रोवेव सब कुछ रहता है। प्लस जो उनका कॉन्फ्रेंस रूम रहता है, तो कॉन्फ्रेंस रूम में उनका टीवी और सब कुछ सिस्टम रहता है, तो दोनों तरीके से उनको ईजी हो जाता है और कंफर्टेबल रहता है। तो एक अगर वैनिटी वैन की बात करें तो कितने में तैयार होती है? डिपेंड्स, अभी देखो मैंने रोहित सर के लिए जो मिस्टर रोहित शेट्टी है उनके लिए जो बनाई, तो मैंने वो 65 लैक्स बनी, क्योंकि उनकी भी चॉइस अलग थी, उनको जो सिस्टम सब चाहिए थी, हाई फाई सिस्टम सब चाहिए था, वो है। अभी सनी सर के लिए मैंने बनाई तो वो भी मुझे 60 to 65 लैक्स में बनी, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट टाइम जब शाहरुख सर ने बनाई थी जो एक्सपांड होने वाली वैन, कि वैन नॉर्मली 8 फीट चौड़ी होती है, उसके बदले उनको ज़्यादा और चौड़ाई चाहिए था, तो चेसिस इतना चौड़ा नहीं आता है, 8 फीट ही चौड़ा है, तो लिमिटेशन है हर एक कंपनी का। तो हमने वो हाइड्रोलिक सिस्टम डाला सनी सर के लिए, और अभी जो है वो 8 फुट के बदले 11 फुट खुलती है, तो वो सबसे महंगी। तो हाइड्रोलिक सिस्टम डालना बहुत महंगा होता है। अभी मैंने सेफ सर के लिए बनाई, तो उसमें भी एक हाइड्रोलिक सिस्टम डाला हुआ है। तो ये इंडस्ट्री की अभी जो आप जो वैन यूज़ अभी बैठी हो, वो वैन चौथी वैन ऐसी है, शाहरुख सर के पास है, रणवीर सिंह के पास है, और सनी सर के पास है, और अभी ये सेफ सर के लिए बनाई कि जो वैन एक्सपांड होती है, अदरवाइज बाकी सब वैन है वो फिक्स रहती है। क्या कभी कोई ऐसी स्ट्रेंज चीज़ है जो किसी सेलिब्रिटी ने मांगी हो आपसे कि नहीं मुझे ये चाहिए, जो आपसे कभी किसी और ने ना मांगा हो? हाँ, ये सबसे पहले तो यही, जब सनी सर ने मुझे बोला कि नहीं केतन मुझे एक्सपांड करना है, तो जो अभी इंडिया में कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो मैं खुद मतलब मुझे वो रिसर्च वगैरह करने में, फिर मैं बाहर से अब्रॉड से मैंने ट्राई किया, तो काफ़ी महंगा पड़ रहा था, तो फिर भी यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ा स्ट्रेंज था मेरे लिए। और सेकंड थिंग, वो एक्सपांड होने तो वाला था ही, फर्स्ट टाइम सनी सर ने मांगा कि मुझे सनरूफ चाहिए, तो मैंने उनकी वैन में सनरूफ भी दिया है। तो वो बोला कि नहीं मुझे मतलब मुझे ये नेचुरल एयर वगैरह, नेचुरल लाइट्स चाहिए, मुझे ये सब लाइट्स अच्छी नहीं लगती है। वो बोला मुझे सफोकेशन होता है। तो प्लस उनका जो विंडोज़ है दोनों साइड के, वो भी विंग्स की तरह पूरा खुलता है, स्लाइडिंग नहीं है। तो बोला विंग्स की तरह खुलना चाहिए कि मैं अगर कहीं पे, अगर मैं महाबलेश्वर में, गोवा में कहीं शूट कर रहा हूँ, तो मुझे एसी नहीं चालू नहीं चाहिए, वो एसी नहीं रखते चालू, वो विंग्स खोल के पूरा नेचुरल एयर में बैठते हैं। क्या डिफरेंस लगता है वैनिटी वैन जो आपने फर्स्ट वैनिटी वैन डिज़ाइन की थी और अब जो आप इतनी मॉडर्न हो चुकी है, क्या डिफरेंस है उनमें? वो भी बहुत डिफरेंस है। पहले साइज़ की भी लिमिटेशन थी। अभी पहले जब मैं फर्स्ट वैन बनाई तो मैंने 30 फीट की थी, फिर वो धीरे धीरे 32 फीट पहुंचा, फिर 35 फीट पे पहुंचा, अभी 40 फीट पे पहुंच गए। अभी 40 फुट की लंबी वैन आ रही है, बड़ी जंबो साइज़ में, वोल्वो साइज़ में, और प्लस वो एक्सपांड होने वाली भी अभी बन गई है। तो पहले बहुत लिमिटेड, और मैं आपको पहले भी बताता था कि पहले खाली सिंगल डोर एक छोटी सी वैन आती थी जो 25-26 फीट की रहती, उसमें एक ही रूम रहता था, एक ही वॉशरूम रहता था। कोविड के टाइम पे भी बहुत काम किया था, वैनिटीज़ प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से आपको लोग जानते भी हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने आपके लिए आवाज़ भी उठाई और उसको शेयर भी किया। तो उस टाइम पे भी कितना हेल्पफुल रहा आपका ये, क्योंकि जब सब कुछ बंद पड़ा था तब ये वैनिटी कितनी हेल्पफुल रही? मेरे हिसाब से बहुत हेल्पफुल रहा था, क्योंकि जब कोविड में, अपना कोरोना में नाकाबंदी थी, मतलब पूरा बंद था सब कुछ, तो मैं खुद ऐसे ही खाली देखने गया था कि मेरा सब वैन्स रोड पे खड़ी थी, पार्किंग में नहीं थी, तो सब ओके है कि नहीं वो चेक करने गया था। तब मुझे एक लेडीज़ कांस्टेबल ने मुझे खड़ा किया था और मुझे बोला कि आपको शर्म नहीं आती है, सब पूरा बंद है, आप लॉकडाउन है और आप बाहर निकलो। मतलब मैडम सॉरी, मतलब मैं थोड़ा चेक करने के लिए निकला था, और मैंने उनके जो बातों में एक ऐसे सवाल पूछ लिया कि मैडम अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो कहाँ जाते हो? तो उन्होंने मुझे मतलब आपको क्या लेना देना है? मैडम ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे इतनी धूप है, मार्च महीने की इतनी धूप है, मार्च अप्रैल की। तो बोला हम लोग नहीं जाते। तो मैं शौक है, मैडम ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोला हाँ हम पानी कम पीते हैं तो नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि मेन रोड पे नाकाबंदी थी। तो मुझे वो चीज़ काफ़ी असर कर गई थी कि यार इन लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तभी मुझे एक एनजीओ से फ़ोन आया कि कहते हैं भाई हम लोग ऐसा ऐसा एक मुंबई पुलिस के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो टेंट वगैरह ऐसा सोच रहे हैं या फ़ैन उनको अंदर देने के लिए, तो आप कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या फाइनेंशियली? मतलब फाइनेंशियल हेल्प नहीं करूँगा मैं आपको दूसरी कुछ हेल्प करता हूँ। बोला कैसे? बोला उन लोगों को अभी रोड में धूप पे खड़े हैं लोग, तो उनको मैं वैनिटी वैन्स प्रोवाइड करता हूँ। तो वो लोग भी शौक के वैनिटी वैन्स देंगे आप पक्का? मतलब
बोला हाँ। तो उन्होंने तब जो अपने कमिश्नर थे मनोज वर्मा जी, उनसे बात किया और ऐसा बोला कि हमारे एक जो वैनिटी वैन सप्लायर है वो चाहते हैं कि मुंबई पुलिस को हम लोग वैनिटी वैन सप्लाई करें और फ्री में वैन दे। तो बोला कोई फ्री में नहीं देता है, ये सब बिजनेस कर रहे हैं अपने अपने, आप ये फालतू बात है। तो बोला नहीं, हमारी बात हुई है, वो पैसे नहीं लेंगे। तो बोला ठीक है, आप फ़ोन लगाओ। तो कमिश्नर के ऑफिस से ही डायरेक्ट उन्होंने फ़ोन लगाया और बोला कितने भाई हम लोग मनोज वर्मा जी के ऑफिस में बैठे हैं और जो कमिश्नर है मुंबई पुलिस के, और ऐसी बात हुई है कि आप वैनिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बोला हाँ। तो फिर लाइन पे सर आए और उन्होंने बोला कि केतन भाई, मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर बोल रहा हूँ, मनोज वर्मा। आपने ऐसा बोला कि वैनिटी फ्री में देंगे। बोला हाँ। तो आर यू श्योर? मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर बोल रहा हूँ, फिर कुछ दावा नहीं चाहिए, क्लेम नहीं चाहिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए। तो बोला सर मैं बोल रहा हूँ कि मैं फ्री में दे रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा कि क्यों? बोला सर, मुंबई जब आया तब 3,000 रुपये लेके आया था, आज जो भी कुछ हूँ, आज इंडिया में सबसे ज़्यादा वैनिटी का मालिक हूँ, तो ये थैंक्स टू मुंबई है। तो आज मुंबई को कुछ देने का एक मौका मिला है, मुझे एक तक मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि मुंबई को मैं कुछ रिटर्न करूँ, और ये समय ऐसा है कि एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। बोला वेरी गुड, आप कितना दे सकते हैं? बोला सर आपको कितना चाहिए? तो बोला 4-5 वैन चाहिए। बोला ठीक है, ओके फाइन सर, मिल जाएगा। So that was the sneak peek into Vanity Van of celebrities, and these have been modified according to their comfort, customized as per the requirement, from coffee machines to the mini fridge and the color combination and the fabric inside. A Vanity Van is very different, and it's different from vanity to vanity and from celebrity to celebrity. So that's their another home in between the shoots.